Welcome back to this divine space of divine souls. So, those who have come for the first time in this channel, let me brief you about what we are all about. So, I'm Jyoti Bakshani, the owner of Healing Touch World. Healing Touch World is a company which provides healing for various different healing modalities, which are not only easy to use, but they are very beneficial. So, we conduct various courses, workshops also on this thing. So, Healing Touch World is not only a healing center, but help people to know their inner self by understanding their innate personality, their life purpose, and goal towards their journey in this life. So, tagline is Know and heal yourself, your life at your fingertips. Under the umbrella of Healing Touch World, Golden Sunrise is the group which was formed during lockdown to help people giving distance Reiki healing during this pandemic. Of course, now it has grown with many healers and healies, and many healies are there which are taking healing sessions. So we have continuous healing sessions and trainings which are given for free. We have group of healers and healies. They all are growing, helping, and healing each other. So it's a divine group with all the divine people. So I've got this opportunity to connect you all with this group of healers and healing. So let me connect you to one of the members today of the Golden Sunrise. So her name is Parul Singh. So come, let's connect to her and know more about her. So let's welcome Parul Singh. तो मैं थोड़ा आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दूं पारुल का. Parul is a graphic designer by profession, and not only she has a good hand on her designing skills, but she makes very good creative bangles, and the other jewelry is also different thing. And not only she has been making and providing people with this, but she even provides people with nice eco Ganpatis. I have seen wonderful Ganpatis, pictures of her which she has made, and this is a way of her doing, like, giving back to her society and nature. So let's welcome Parul and hear more about from her. So welcome Parul जी. पारुल, मुझे तुम अपने बारे में थोड़ा बताओ करके कि कैसे तुम्हारी लाइफ की कुछ जर्नी रही है, एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कि क्या तुम शुरू से ही ग्राफिक डिजाइनर थी और फिर उसमें कुछ हर्डल आए तुम्हारे प्रोसेस में लाइफ के, तो फिर कैसे तुम एक ग्राफिक डिजाइनर, एक इतनी अच्छी डिजाइनिंग मैंने आपके देखे हैं, बैंगल्स वगैरह बहुत अच्छे बनाए हैं, ज्वेलरीज भी. तो कैसे ये जर्नी तुम्हारी पूरी रही और कैसे तुम हमारे गोल्डन सनराइज में आई, तो उसके बारे में थोड़ा एक अपनी जर्नी के बारे में बताओगी. ओके ओके, ठीक है फिर. तो मेरा वैसे ग्राफिक डिजाइनिंग प्रोफेशन नहीं था. 10th के बाद मुझको मतलब फैमिली ने सजेस्ट किया कि आप इंजीनियरिंग कर लो. तो 10th के बाद फाउंडेशन बैच आता है, तो उसकी मुझे कोचिंग्स कराई गई. हम्म. 12th के बाद मुझे एग्जाम्स दिलाए गए, पर मुझे इंजीनियरिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था. मेरा मैथ्स केमिस्ट्री अच्छा था, फिजिक्स मुझे समझ में भी नहीं आती थी उसकी. तो बाय नेचर मैं अंदर से इंटरेस्टेड नहीं थी, पर सोसाइटी को देख के कि एक डॉक्टर और इंजीनियर दो ही फील्ड है, यही बनना है. हम्म. फैमिली प्रेशर कि आपको या तो डॉक्टर पिक करो या आपको इंजीनियर बनना, उन्हें और कोई ऑप्शन नहीं पता थे. मुझको भी लगता था शायद यही होता है कुछ. लेकिन अंदर से हमेशा कलर्स से बहुत प्यार रहा है. तो मैं गॉड से ऐसा मैनिफेस्ट करती थी. मुझे पता नहीं था कि ग्राफिक डिजाइनिंग भी कुछ होती है ऐसा कुछ. तो मैं मैनिफेस्ट करती थी कि गॉड ऐसा कोई फील्ड है, कुछ है कि मैं खूब सारी आर्ट बनाऊं, इसमें करियर बना सकूं. एक अंदर था आर्ट में. पर उसमें काफी टाइम इंजीनियरिंग में वेस्ट हुआ. मैंने कॉलेज नहीं ज्वाइन किए, बट 3-4 साल प्रिपरेशन में चले गए. तो जब वहां अच्छा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरा कजिन था, उसने बोला अब क्या करोगी. तो मैंने उसको इसके सामने ये चीज रखी कि मुझे कलर्स वगैरह बहुत पसंद है, ऐसा कोई फील्ड हो तो बताओ. तो हम्म. उसने कहा कि तुम गेमिंग में चले जाओ. तो वो खुद ही गया, और अरीना एनिमेशन है, काका देव का इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग एनिमेशन वगैरह सिखाया जाता है. तो वहां पे बात करके आया, बड़ा इंस्टेंट हुआ सब कुछ. फिर मुझे लेके गया, तो वहां पे मैंने बात की, मुझे सब बताया गया कि आपका 4 इयर्स का कोर्स है. जो आप इंजीनियरिंग करते हो एज अ डिग्री, वही आपको इसमें इसमें मास्टर्स हो जाओगे, आपको क्रिएटिव फील्ड मिल जाएगी.
तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं, यही क्रिएटिव फील्ड चाहिए थी मुझे। तो इसमें भी 4 साल का था पूरा एनिमेशन पढ़ा तो मैंने, लेकिन इसमें भी कई ट्रेड होते हैं, जैसे डॉक्टर होते हैं ना, बोलते हैं कि आप हम्म, ब्रेन के डॉक्टर बन सकते हैं, हार्ट के डॉक्टर बन सकते हैं। तो इसमें भी चॉइस थी कि आपको 3D में जाना है, 2D में जाना है, ग्राफिक डिजाइन पिक करना है, तो मैंने ग्राफिक डिजाइन पिक किया। तो 1 साल तो एज अ फ्रेशर जॉब भी किया मैंने। हम्म, दिल्ली गए, काफी रश हो गया। वापस आए, किसी रीजन से मैं घर वापस आ गई, मुझे नहीं पता। मेरे पापा का लास्ट टाइम चल रहा था उस टाइम, उनको कोविड में वो एक्सपायर हो गए। और वो ही जल्दी जल्दी मेरी शादी भी ढूंढ के गए थे। तो उनके जाने के बाद मम्मी बहुत परेशान हो गई, उनको लगा शादी हो जानी चाहिए, बहुत इनसिक्योर होने लगी। तो शादी हो गई, मैं अंदर से बड़ा डिच हुआ कि मतलब मेरा करियर, मतलब तो ज्वेलरी वहां से स्टार्ट हुई। मैं इको, ये गणेश जी, मुझे मिट्टी से बड़ा प्यार था, तो ये चीजें मैं पहले बनाया करती थी, गणेश जी वगैरह। अच्छा। गणेश जी बनाने का एक रीजन ये था कि मुझे पता नहीं, 2016 से लेके 2017-18 तक कुछ डिप्रेशन टाइप का कुछ हुआ, तो मैं मिट्टी की शिवलिंग बना के पार्थिव उनकी पूजा करने लगी। तो वो शिवलिंग, वो जो मिट्टी है ना, मतलब कुम्हार की मिट्टी जिसको बोलते हैं, उसकी हम्म, खुशबू मुझे बहुत पसंद थी। तो हाँ। मैं इतना अट्रैक्ट हुई, तो उससे मैं गणपति जी बनाने लगी। तो तब ओके। से ना मुझे क्ले में बहुत इंटरेस्ट हुआ। फिर पापा के जाने के बाद शादी हो गई। रोते बहुत थे क्योंकि करियर के लिए बहुत डेस्परेट थे, शादी के लिए इतना नहीं। हम्म, तो ये भी मैनिफेस्ट किया था कि पार्टनर सपोर्टिंग मिले। थोड़ा इन लॉज का प्रॉब्लम था, तो बाहर आ गए, शिफ्ट हो गए, अब तो घर भी बन रहा है। बट ज्वेलरी में क्या था कि शादी होने के बाद ही पता नहीं कैसे, मैं शायद 1-2 इमेजेस देखी होंगी मैंने पिंटरेस्ट वगैरह पे बैंगल्स की, तो मैं खुद से बनाने लगी। यहाँ लोकल शॉप पे गई, थोड़ा बहुत जो मिल पाया, यहाँ ज्यादा चीजें मिलती नहीं है ना, थ्रेड्स वगैरह लेकर आई। तो सेल्फ ही सीखना शुरू किया धीरे धीरे। काफी हर्डल्स थे, मतलब पति के घर में भी, फिर भी मैंने काम नहीं छोड़ा। उसके बाद हम बाहर शिफ्ट हो गए, और हर्डल्स आए। तो इतने हर्डल्स आए कि मैं लिटरली गॉड से कहने लगी मुझे हेल्प चाहिए। अच्छे लोगों से मुझे मिलाइए, मुझे कुछ मैजिकल लोगों से मिलाइए, कुछ मेरा मतलब सोल लेवल पे कुछ अच्छा हो सके, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। तो एक हीलर है, सोनल यादव करके नाम है उनका, ये आपके ग्रुप में पहले थी, ठीक है, अभी होंगी मुझे पता नहीं है। तो वो आज अब एसेंशियल कोच बन गई हैं इस टाइम पे, ट्विन फ्लेम हीलिंग ये सब करती हैं। yes, तो उन्होंने ही मुझे ऐड किया था इस ग्रुप में कि okay, तुम इसमें रहो, इसमें बहुत प्यारे लोग हैं, तुमको सब कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। तो मैं इस ग्रुप में आई, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं, मेरा जो शायद वानी वानी मैम का जो पोनो सेशन था, वो मेरा पहला इसमें सेशन था, जो मुझे इतना अच्छा लगा। और वहां पे मैं आपसे मिली, जब आपने मुझे सुना, और वहां से मेरी आपसे बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई। तो ऐसे मैं जुड़ी। और अब मेरी ज्वेलरी डिजाइन और जो हैंडक्राफ्ट है, लाइक मंडला वगैरह, तो क्ले आर्ट, ये सब मेरी बहुत स्किल में, मतलब बहुत अच्छी हो गई है प्रैक्टिस करते करते। हाँ, अभी स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया है, क्योंकि प्रेग्नेंट हो गए, बेबी आ गए, तो टाइम भी नहीं मिल पाया, थोड़ी प्रॉब्लम्स आई। बट अभी वापस से बिजनेस को कंटिन्यू किया है, देखते हैं कि गॉड कितनी हेल्प करते हैं, और खुद भी ऐसे धीरे धीरे एफर्ट करते हैं। लेकिन मुझे क्योंकि हीलिंग भी करनी है अपनी, स्पिरिचुअलिटी में भी जाना है। पर एज ए मटेरियलिस्टिक, जो गॉड ने मुझे ये टैलेंट दिया हुआ है कि, तो ये मैं चाहती हूँ मेरे भी काम आए, और किसी और नीडी लोगों के भी काम आ जाए, इसलिए मैं इसको इनहेंस करना चाहती हूँ, ये क्रिएटिविटी। तो ऐसे मैं आपके ग्रुप में ऐड हुई। बहुत अच्छा लगा तुम्हारी जर्नी सुन के। मुझे याद है कि जब हमारा होपन का सेशन था, तब हमने फर्स्ट टाइम आप तुम्हें देखा था। तब हाँ एक हाँ हाँ यंग, एक बच्ची जैसे, बस सहमी सी लड़की थी। एंड हमें हाँ। बहुत उस फील हो रहा था टाइम तुम्हारे लिए। बहुत डरे हुए थे, क्योंकि ऐसा एटमोसफेयर नहीं देखा था कभी भी, तो लगता था क्या हो रहा है। फिर जब जुड़े, तो ये प्रेयर की पावर पता चली, तब वानी मैम से भी बहुत ज्यादा कनेक्ट हुए।
और हम्म। आपसे मैंने ना बहुत ज्यादा अभी अपने सेल्फ मेडिटेशन करी हुई है। और नाम जाप तो मैं पूछती भी हूँ गॉड से कि मुझे इनसे इतना इंटरेक्शन क्यों है, आपसे ज्यादा अफेक्शन क्यों होता है। तो ये आता है कि मेरा आपका सोल बॉन्ड बहुत अच्छा है, मतलब एज ए एंजेलिक अपने आप। जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है या मुझे आगे बढ़ना है, जैसे मैंने नाम जब कर रही थी, मंत्रा चैंटिंग कर रही थी, तो कुछ पॉजिटिविटी के साथ नेगेटिविटी भी आ रही थी। तो ये हुआ कि गुरु, पहले मैंने शिव जी को गुरु बनाया क्योंकि मुझे लगा कोई गुरु नहीं। फिर अंदर से ऐसी फीलिंग आने लगी कि नहीं, तुमको एक गुरु ढूंढना है। तो बार बार कल मैं सेल्फ पूछ रही थी, पार्वती मैया मुझे कोई गुरु दिला दीजिए, जल्दी से जल्दी दिलाइए, मैं विश्वास कर सकूं और ज्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े। एकदम से आपका चेहरा आया सामने, तो अरे इन पे तो मुझे पूरा विश्वास है। बोली बस पकड़ लो हाथ और बस मंत्र चैंट करो, ये है मतलब सब ठीक है। तो इतना वाइब्रेशन है आपका मुझ पे, थैंक यू, थैंक। आपकी सोल का। नहीं, मुझे बहुत तुम्हें देख के इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं जैसे जैसे हमने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, एंड वो फर्स्ट सेशन में ही तुमने अपने आप को इतने अच्छे से वेंट आउट, क्योंकि तुम रेडी थी अब अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एंड लोगों को पता था कि ये जब आई थी तब उनकी जस्ट नई शादी हुई थी, बहुत सारे स्ट्रेस थे, कितनी चीजें हैंडल कर रही थी वो अकेली। एंड फिर लेकिन पूरे ग्रुप का उसको हाँ सपोर्ट मिला, एंड जो एक एक मदरली लव के लिए तरस रही थी, आज वो एक खुद एक मदर बन रही है, मदर बन चुकी है बहुत प्यारे बच्चे की। एंड शी इज हैंडलिंग इट वेरी नाइसली, वो बहुत अच्छे से सब अच्छा। चीज हैंडल कर रही है। अभी मैं आपको बताऊं, 1 ईयर बहुत डिफिकल्ट थी जब बेबी आई। वहां हाँ। पे भी बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट किया गया, हॉस्पिटल वगैरह में हम्म। बहुत परेशान किया गया। तो यहाँ पे क्या था कि मैंने अकेले ही संभाला। तो वो गॉड थे और ग्रुप की एनर्जी ऑलवेज, क्योंकि मैं वैसे सेशंस में टाइम नहीं निकाल पा रही थी क्योंकि बेबी की वजह से, पर ब्लेसिंग्स मिलती थी आप लोग। और मुझे अंदर से हमेशा रहता था। जब मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगी, मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें सोनू निगम आए थे। उसकी एक लाइन मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसने बड़ा अच्छा बोला था कि आपको लाइफ में ना क्या बनना है इससे ज्यादा ज्यादा जरूरी है कि आप ये सीखो कि आपको क्या नहीं बनना है। तो मैं जब अपने पापा के घर पे रही, वहां भी एटमोस्फेयर बड़ा गंदा था। इनके यहाँ भी मतलब ये बहुत अच्छे हैं, 22 सोल बहुत अच्छे हैं, पर इनकी जो अदर फैमिली है बहुत बहुत अभी बहुत पीछे है, सोल लेवल पे भी बहुत गंदा सा एटमोस्फेयर है। तो मुझे लगा इनके जैसे तो कभी नहीं बनना है, क्योंकि ये मैं हूं नहीं। यहाँ से निकलो वरना, क्योंकि इनकी तरह है नहीं तो सरवाइव नहीं कर सकते इनके बीच में। तो वो ट्रांसफर बहुत डरे। और बेबी के आने के बाद 1 साल जैसे लगता है गॉड ने स्ट्रेंथ दी कि आपको इसकी पेरेंटिंग सब कुछ, वो ब्रेव बन के अकेले करना है सब कुछ। तो वहां पे क्या हुआ कि मेरा जो लिंक आप सबसे, और भी ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं। तो मेरी एक दीदू मतलब सिस्टर है, कजिन है, उन्होंने मुझसे एक बात कही, तब मुझे रियलाइज हुआ, तब ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अलग सा निखरा। हाँ। क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि देखो उन सब के ग्रुप में कैसे लोग हैं और तुमने अपनी फैमिली कैसी बना रखी है। तो मैंने फोन रखा उनका और सोचा, गॉड को पहले थैंक यू बोला, क्योंकि मेरे आस पास आप जैसे लोग हैं और भी लोग हैं, मतलब जो हम्म। इस फील्ड में या स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत हैं, वो इतने लकी हैं कि इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिल रहे हैं। इन लोगों को पता भी नहीं होगा कि क्या होती है सोल लेवल पे जर्नी। तब मुझे लगा कि हाँ, गॉड कहते हैं ना कुछ ब्रेक करते हैं आपको इस पाथ पे लाने के लिए। तो हम्म। मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि हो सकता है इतना ब्रेक किया गया कि आप मुड़ो उधर। तब मैं उस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ कि मैं आप जैसे लोगों के साथ, मतलब आप लोग मेरे साथ हैं। हम तो रहेंगे हमेशा तुम्हारे बहुत साथ। ग्रेटफुल है। एंड क्या हो जाता है कि जब आप जर्नी में थोड़े ऊपर रहते हैं ना, सोल लेवल पे थोड़े आगे हो जाते हैं, और जो दूसरे नहीं है तुम्हारे, तो हाँ हाँ वो थोड़ी वो एनर्जी डिफरेंशिएशन है ना, वो कभी कभी ऐसे फील होती है, जो लोग रहते हैं उनको फील होती है, सेंस होता है, इसलिए वो हाँ हाँ अनकंफर्टेबिलिटी आती है। तो हमेशा ये कोशिश रखनी कि वो एक पॉजिटिव एनर्जी वाली जो ग्रुप है उसमें थोड़ा कनेक्शन बना रहे आपका, ताकि आपकी एनर्जी थोड़ी बैलेंस रहे, हाँ आप कंफर्टेबल फील होगी कि धरती हाँ। पे मैं आए हैं, तो उसमें हमें वो रेगुलर जीना नहीं हो तो है पाती ही। हूँ। हाँ। अच्छा, मैंने माँ सोचा, जो मम्मी के यहाँ है, मम्मी के यहाँ जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो जो यहाँ के फैमिली मेंबर्स हैं, दोनों ही तरफ बहुत टॉक्सिक हैं। पर मेरी मदर और फादर बहुत प्यारे हैं।
इनके यहाँ जो मैंने देखा, मेरे हस्बैंड सोल लेवल पे बहुत प्यारे हैं, इनके फादर भी अच्छे हैं, बट ओवरऑल फैमिली बहुत टॉक्सिक है, स्पेशली इनकी मदर टॉक्सिक है। तो मुझे लगता है कि आप इनको सिखाओगे भी कैसे, क्योंकि ये सीखना नहीं चाहते इन द सेंस अपनी सोल को इम्प्रूव नहीं करना चाहते, जैसे वही लो मेंटालिटी हो। तो मुझे लगा कि आप मतलब ऐसी जगह अपना एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकते, ये नहीं लोग कर, आपको ड्रेन कर दे रहे हैं। तो सबका जब टाइम आ, आता है तो वो खुद ही, तुम रेडी हो गई अपने आप को ऊपर हाँ, लाने के लिए तो तुम टाइम पे पहुंच गई हमारे यहाँ। तो वैसे हर एक की एक जर्नी होती, कोई शायद उसके लिए आया ही नहीं होगा तो इसलिए वो वैसे ही रहेंगे। लेकिन लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था ना कि मुझे मत परेशान कर दिया अभी आज की डेट में। नहीं, अभी जब तुम्हें मैं दिया बात है ना, करूँ। अभी तुम्हें इतना प्यारा बेबी दिया है, तुम्हारी लाइफ को आगे एक डायरेक्शन मिला हम्म है। हम्म हम्म तो हम्म। वो तुम्हारी एक स्ट्रेंथ भी है, तो वो डायरेक्शन भी तुम्हें बहुत हेल्प करेगी। अभी वैसे- माँ, जैसे मैं आपको एक चीज और अभी कल परसों की फीलिंग बता रही हूँ, जब नाम जप किया, क्योंकि मैंने मंत्र चैंटिंग करी हुई थी, 1 महीने मैंने किया था प्रॉपर मंत्र चैंटिंग, क्योंकि मुझे पता नहीं था, इवन ये भी नहीं पता था कि आसन पे बैठ के करना है, बस जस्ट एक धुन सवार थी कि मुझे बहुत सारे मंत्र चैंट करने, मतलब अंदर ही अंदर मुझे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है, तो इतना पता नहीं था, तो कई मंत्र चैंट कर दिए थे। बट मुझे लगता है कि गॉड को पता था कि इसको पता नहीं है, बहुत बहुत प्यार से उन्होंने मुझे संभाला। मैंने, कहते हैं एक ही मंत्र चैंटिंग करना चाहिए, तो मैंने सूर्य देव जी का कर दिया, काफी तो देर तक एक दिन उन्हीं को चैंट करते रहे, फिर तारा माँ के मंत्र, क्योंकि आप एक ही मंत्र जप सकते हो अगर आपको किसी गॉड से प्यार है तो। तो इतने सारे हुआ क्या, 1 महीने बाद मेरा सेंस थोड़ा सा खुला, लेटे हुए थे, बाबू पेट में थी तब। तो खुलती हुई आंखों से मुझे ऐसा दिखा, मुझे शिवलिंग दिखाई गई व्हाइट कलर की, और क्लाउड्स के बीच में चमकती हुई, वो मेरा सबसे प्यारा अनुभव था। लेकिन उसके बाद लग रहा है सेंस बंद हो गए, क्योंकि वापस से नेगेटिविटी का जो फ्लो था बहुत हाई था, एकदम से चीजें हुई और ट्रस्ट खो दिया, फिर उसमें जूझने लगे 1 साल, 2 1.5 साल तक। तो कुछ पता नहीं था, तो फिर वापस से कई वीडियोस देखे, नेगेटिविटी कई तरह की थी, एक तो टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स, प्लस वैसी भी नेगेटिविटी थी, जो कहते हैं कि कुछ ब्लैक कर दिया जाता है, मम्मी क्या किया गया था, भाभी नहीं, वो मुझे पता चला। तो रिमूव करने के लिए मैंने बड़ा हनुमान चालीसा चैंट किया, मेरा फियर तो निकल गया, बड़ा अकेले फाइट की, मतलब गॉड के उसमें रह के सब धीरे धीरे पता चला। तो वहां एक ही चीज निकल के आई कि जब आप मंत्र चैंट करो तो आपके पास गुरु होने चाहिए, ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सके। तो पहले तो शिव जी को बनाया, फिर भी अंदर से वाइब आ रही थी कि शिव जी भी कह रहे कि एक कोई अच्छा सा मिल जाए। तो कल परसों भी मेरे पास एक वीडियो आया, कहते हैं ना यूनिवर्स किसी ना किसी माध्यम से माधुरी आपको, से तो फिर बोलते से वो हैं। मुझे श्योर कर रहे थे कि पहले यूनिवर्स में पुट कर लो कि आपके पास गुरु है। तो मैंने फिर पार्वती माँ से कल कल की परसों रात में कहा कि प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, कहीं इधर उधर मुझे भटकना ना पड़े, ट्रस्ट हो मुझे उन पे, और वो मुझे सही गाइड करे, वो मेरा मतलब एज अ गुरु रहे, ताकि मैं आराम से मतलब स्टैंड कर सकूं, ये सारी चीजें फिर बहुत हाई लेवल पे जाऊं, मेरे जो जो चक्रास हैं वो अलाइन हो, चीजें ठीक हो, तब आप आई, मतलब अंदर आई, सोल के अंदर, सोल ने कनेक्ट किया, अरे उनसे बात करो ज्योति माँ से। और हम तब स्टार्ट भी पार्वती कर रहे माँ हैं, ने कहा, एक रेगुलर सेशन स्टार्ट कर रहे हैं मंत्रा का, स्पेसिफिक अलाइनमेंट्स के लिए। अच्छा तो ठीक है। मैं और मुझे आपको मैं ये थैंक यू कहना चाहती हूँ कि अभी हमने कल ही बात करी है, और पार्वती माँ ने बिल्कुल बोल दिया ठीक है ये डन है, उसके बाद आज ही मेरी आपसे बात हो रही है, तो सब यूनिवर्स और मतलब गॉड भी रेडी है कि सही पिक किया है। सही है, तो बहुत बहुत अच्छा लगा तुमसे ये तुम्हारे एक्सपीरियंसेस सुन के, और जो तुम्हारे हमारे ग्रुप के साथ एक्सपीरियंसेस रहे हैं। कुछ और भी तुम चाहोगे, लाइक तुम फ्यूचर में और क्या क्या चाहती हो इस ग्रुप से, लाइक कुछ तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस हैं मैं या कुछ? मैं चाहती हूँ, मेरा डीप लेवल पे ये डिजायर है, क्योंकि हम्म। आपके ग्रुप में बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट लोग हैं, तो और सभी के अंदर कुछ ना कुछ खूबी है। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग ना पर्सनल तो मतलब करते ही हैं, जो भी अर्न करते हैं, जो भी मतलब मैं भी करूंगी धीरे धीरे। मैं चाहती हूँ उसका कुछ परसेंट उस आपके ग्रुप के थ्रू आप ही उसको चलाओ,
मतलब कुछ चैरिटी वाला बन सके। हम ही लोगों की जो, जैसे मेरा क्रिएटिविटी है, अगर मैं ज्वेलरी भी सेल करती हूँ, सपोज मेरा एक बैंगल सेट है, मैं ऐसा एक एग्जांपल दे रही हूँ छोटा सा, हम्म, मैंने उसको सेल किया, मेरा वो 3000 में बिका पूरा सेट, मतलब बैंगल का और इयरिंग का। तो ना मैं उसका आधा अपने पास रख लूं क्योंकि मुझे जरूरत होगी, हम्म, और उसका कुछ वन, जैसे मैंने 2000 रख लिया और 1K मैंने उठा के आपके उस चैरिटी में डाल दिया, ठीक है। लेकिन वो डाला किससे, पति से नहीं मांगा, मतलब कोई सेविंग नहीं थी, वो जो मेरे पास गॉड ने जो वो हुनर दिया है ना, वो हम्म। उससे जो आया उसका कुछ, तो उससे आप लोग मतलब कुछ ऐसा कर दो कि किसी और की और लाइफ की भी कुछ मदद हो, हाँ ठीक है, हम तुम्हारे ये पॉइंट को पक्का नोट करेंगे एंड हम ऐसा कुछ प्रोसेस भी स्टार्ट करेंगे। आइडिया बहुत हाँ अच्छी है तो तुम्हारी। हाँ सब लोग कंट्रीब्यूट करें, मतलब मैं भी हाँ, करूँ, सब लोग, ऐसा नहीं कि सब उठा के दे दो, बट हाँ जैसे अगर मेरा 3 है तो मैं एक दे दूँ, तो मतलब ये रहे पर मंथ हम लोग के अंदर ना वो कि लायक नहीं, हमको देना ही देना है, तो उस हिसाब से मेहनत होगी, बूस्ट होगा कि हाँ ये करना है, हाँ तो मुझे उससे करना ना। है तो एक और तो बूस्ट भी मिल जाएगा तुम्हें, ये भी बात सही, हाँ, बहुत अच्छी आइडिया है। और ये है ना, इससे ना जैसे दुनिया भर के एनजीओज होते हैं, मैं एनजीओ नहीं बोलूंगी, जैसे आपका ये गोल्डन सनराइज बना है, वैसे गोल्डन सनराइज ही नाम हो उसका चाहे तो, और वो इतना ऊपर उठ जाए ना, और उसमें कई सारी सोल्स की हेल्प हो। मैं टॉक्सिक लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, वो जो टॉक्सिक लोगों के बीच में फंसे हुए हैं, मतलब उनको हाँ, हेल्प मिल सके। तो और क्योंकि मैं आपके सेशंस बेबी की वजह से अटेंड नहीं कर पाती हूँ, पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अटेंड कर लूँ। वैसे मैं चाहती हूँ कि वो वाला हो माँ, जो ब्लॉक्स में पड़े होते हैं अंदर, कहीं फाइनेंशियल ब्लॉक है या किसी पर्सन से ब्लॉक है, वो हमेशा के लिए वो टॉक्सिक एनर्जी निकल जाए, वो हीलिंग, वो ब्लॉक सील करें आप सबसे पूछ सकती हैं कि क्या क्या ब्लॉक है। मतलब जैसे मैं आपको बताऊं तो, जैसे किसी पर्सन का, मुझे पता नहीं कि वो कार्मिक है क्या है, जैसे इनकी मदर इन लॉ का ही मेरे साथ रहा है, जैसे वो कुछ स्लेवरी एनर्जी चाहती थी मुझसे, जबरदस्ती कंट्रोल करना या कैद करना। तो वो कहते हैं इस ब्लॉक को अगर हटाना हो, स्लेवरी एनर्जी को हटाना हो, या कोई आपकी फ्रीडम को कैप्चर कर रहा है, कंट्रोल हाथ में ले रहा है अपने, तो ये सारे ब्लॉक जो हटाने होते हैं, इसके लिए अगर कोई मेडिटेशन होता है, कुछ मंत्रा चैंटिंग होती है, वो ब्लॉक कैसे हटते हैं, तो इस पे आप, या कभी फाइनेंशियल किसी का ब्लॉक है, किसी का क्रिएटिविटी ब्लॉक है, किसी का हेल्थ ब्लॉक है, तो वो जो अंदर के ब्लॉकेजेस पड़े हुए हैं जो बॉडी सेशंस को। एक्चुअली चल रहे हैं, काफी चल रहे हैं। हम लोग ने अबंडेंस पे भी काफी वर्कशॉप्स किए हैं। हेल्थ रिलेटेड वर्कशॉप्स अच्छा तो अच्छा। चलते ही रहते हैं, ट्रेनिंग्स तो उस पे तो होती ही रहती है हमारी, कंटिन्यूस हेल्थ पर तो अच्छा कंटिन्यूस रहता है। रिलेशनशिप्स के भी हमने तो बीच में किए थे, और दो चार स्पेसिफिक मेडिटेशंस प्रोग्राम के किए थे हम लोग ने, शायद तुम्हारा क्योंकि बच्चे के तो कारण मैंने मिस कर मिस गई। कर दिए बच्चे की वजह हाँ, से। माँ तो हाँ, तो वो माँ लेकिन एक कंटिन्यू एक होगा, अभी हम रिक्वेस्ट लोग है, थोड़ा रेगुलर, सब लोग बोल रहे हैं कि हमको वो सेशंस थोड़े ज्यादा चाहिए, तो वो थोड़ा हम मुझे तो रेगुलर सबसे करेंगे। पहले आप रिलेशनशिप और एबेंडेंस के मुझे चाहिए। माँ आपसे एक रिक्वेस्ट हो रही है, क्योंकि मैं आपके यूट्यूब वीडियो देखती हूँ थोड़े से, जैसे कल उनका देखा था जिनका आपने इंटरव्यू लिया था, आपके जो भी सेशन हो वो आप यूट्यूब पे डाल दिया करिए, तो वो चीज मतलब रहेगी वहां पे वीडियो में, तो हम्म, ये बहुत हेल्प मिलेगी, मतलब उनको भी मिलेगी जो ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, तो हाँ, काफी लोगों तक रीच करेंगे वीडियोस। तो ये भी हो सकता है, इससे भी बहुत हेल्प मिलेगी, जैसे नहीं देख पाए तो यूट्यूब देख, क्योंकि मेडिटेशन के वीडियो देखते हैं, बाबू सो जाती है तो यूट्यूब की हेल्प लेते हैं, तो आपके वीडियोस वहां रहेंगे तो और आसान रहेगा, तो ये हो सकता है, तो ये मैं चाहूंगी कि सारे वीडियोस वहां चले जाएं, ठीक है। अभी मतलब तक तो हम जितने लोग सेशंस glimpses हुए हैं डाल रहे हैं, वो मिस लेकिन नहीं कुछ हो। कुछ वीडियोस हम पूरे भी डालेंगे, क्योंकि अगर जब डिमांड है लोगों की, क्योंकि लोगों को किसी किसी को नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो बोले हमको बाद में एटलीस्ट करने को मिले, तो हम रिकॉर्ड करेंगे और हाँ उनकी। रीच, और फिर वो चीज रीच भी हो जाएगी सब तक, वो सारे सेशन, क्योंकि मैं ढूंढती हूँ फिर रात में मेडिटेट करूँ या मॉर्निंग में मेडिटेट करती हूँ, तो मेरा आपसे कहने का मन था कि आप सारे सेशंस उसमें भी ऐड कर दिया हाँ, करिए, तो ये भी हेल्प अच्छी होगी। माँ चलो एक बार अभी आप जब मेडिटेशन स्टार्ट करिएगा तो एक बार रिलेशनशिप से रिलेटेड फिर से एक बार जरूर ठीक है, चल करिएगा। करूंगी, पक्का करूंगी, एंड तुम्हें भी इन्फॉर्म करूंगी स्पेसिफिकली जब ले रही हूँ, ताकि तुम्हारा टाइम हाँ सेट हो मैं जाए आने आने का। हाँ, है ना। काफी काफी अच्छा लगा पारुल तुम्हारे साथ। अच्छा ठीक है, अब
तुमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की है, बहुत प्यारी बातें की हैं। तुमसे बात करके हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी इतनी प्यारी मुस्कुराहट है। तो अभी हम लोग तुम्हारे साथ एक रैपिड क्वेश्चन राउंड खेलते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है। ये एक नया आज हाँ। तुम्हारे से ही स्टार्ट किया है, देखो तुम्हारी तो तुम्हारा मेरा मूड भी आ गया। तो रैपिड क्वेश्चन में पारुल के लिए पहला क्वेश्चन ये है कि तुम मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट आउल हो? रात को जागना नाइट नाइट नाइट। नाइट। अच्छा, तुम्हें माउंटेन्स पसंद है या बीचेस? माउंटेन्स। माउंटेन्स पसंद है, ओके। चाय पसंद है या कॉफी? चाय। ओके, तो तुम चाय पर्सन हो। तुम्हें म्यूजिक पसंद है कि साइलेंस पसंद है? मुझे म्यूजिक में बहुत स्लो रोमांटिक वाले गाने पसंद है। वैसे स्पिरिचुअल चले गए हैं तो साइलेंस अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओके। तो साइलेंस ही बोलूंगी, अब तो साइलेंस ही। हार्ट या माइंड, कौन सा तुम पे भारी पड़ता है? दिल या दिमाग? हार्ड तो अच्छा है लेकिन मुझे लगता है दिमाग मेरा गंदा वाला नहीं है, पर मुझे लगता है दिमाग मुझे उलझा देता है। पर मैं सुनती दिल की हूँ, तो क्या चूज करूँ, दिल की दिमाग? नहीं तो दिमाग भारी दिल। पड़ रहा है ना, मतलब दिल की सुन रही हो, दिल का सुनो, हाँ है ना? दिल तुम्हें तुम्हारे नहीं, इंट्यूशन के सुनती साथ दिल कनेक्ट के करता ऊपर। हाँ। है, पर दिमाग परेशान मुझे करते लगता है हैं। कि टॉक्सिसिटी अपने आप में ही घूम जाती है उसी में। दिमाग परेशान कर देता है। वैसे हार्ड चूज करूंगी। हम्म, फिर तुम्हें बचपन या अभी, कौन हम्म। सा चीज कंफर्ट देगा तुमको फील में? अभी बचपन वाला ट्रॉमा था, अभी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, अभी जो हूँ अभी। प्रेयर या मेडिटेशन, कौन सा चुनूंगी? मेडिटेशन। मेडिटेशन। अगर मैं तुमको टाइम ट्रैवल कराऊं तो तुम किस में जाना चाहोगी, पास्ट के फ्यूचर में? मैं फ्यूचर में जाना चाहूंगी, मैं पास्ट में नहीं जाना नहीं चाहूंगी। जाना चाहते, सही बात है, अच्छी बात है। स्पाइसी खाना पसंद है या मीठा खाना? मुझे मीठा पसंद है। ओके, वेरी नाइस, तुम मीठी भी हो बहुत। ठीक है। और लास्ट लास्ट सवाल है कि गिवर या रिसीवर, कौन सा चीज तुमको मुश्किल लगता है? लाइक बीइंग अ गिवर के रिसीवर, कौन सा चीज मुश्किल लगता है? देना या लेना? पर मुझे देना पसंद है बहुत ज्यादा। हम्म, तो लेना मुश्किल लगता है ऐसा? ये दोनों बैलेंस। नहीं। देना मतलब मैं ना चाहते हुए भी हेल्प कर देती, अंदर से फीलिंग आती है, अगर नहीं दिया तो रिग्रेट होने लगता है। तो आ, मैं क्वेश्चन में फिर से पूछिए ये वाला। मतलब मुझे देना मतलब पसंद है क्या कि कि लेना? हाँ, तुमको कौन सा चीज मुश्किल लगता है, देना के लेना, ऐसा? शायद लेना ही मुश्किल लगता है मुझे। समझ गई थी, क्योंकि तुम्हारा इंस्टेंट इंस्टेंट जो आता है ना वो दिल से आता है, जब हम रैपिड बोलते हैं तो इंस्टेंट जो आ जाता है, तो इंस्टेंट तुम्हारा वही है कि हाँ। मुझे देना अच्छा लगता है। तो मतलब ठीक है, हाँ। तो तुम गिवर हो, लेकिन तुमको देना अच्छा लगता है, तुम्हें लेने में थोड़ी कठिनाई होती है। वो काफी बेवकूफ भी बना दिए जाते हैं, अभी तो थोड़ा सीख रहे हैं उसमें। लेकिन सीख रही हूँ मैं। जैसे सीखने का मतलब ये है कि पाथ तो चेंज हो गया है, पर देखिए गॉड हेल्प करते जाएंगे। लोग ना यूज कर लेते हैं मेंटल लेवल पे, पहले बहुत कर लेते थे, अभी तो चीजें चेंज हो अभी रही हैं। काफी काफी चेंजेस हो गए हैं तुम्हें, बहुत अच्छा, ये चीजें अच्छी चीजें कंटिन्यू भी करो, लाइक नहीं, बस यही है कि मेडिटेशन वहाँ करना चाहती हूँ, पर बाबू उठ जाती है ना, तो पहले मैं नाइट में करती थी, है ना। हम्म। मेडिटेशन मैंने की है, तो मुझे आपको मैं बताना चाहूंगी कि मेडिटेशन में मैंने कुछ खराब चीजें भी देखी, कुछ बहुत अच्छी चीजें देखी। बड़ा जल्दी पहुंची हूँ मैं, 1 महीने मैंने देखा एस्ट्रल ट्रेवल जैसे, कुछ बहुत हाई लेवल पे नहीं देखा था, बस देखा बहुत लाइट सोल्स उड़ रही हैं, सबको देख रही हूँ मैं। कुछ चीजें इतनी अच्छी थी उसमें कि मुझे आज भी याद है। अब मुझे वो फीलिंग नहीं होती है, क्योंकि कंटिन्यू नहीं रहा। प्रॉब्लम ये थी कि कई वीडियोस ऐसे देख ली कि आप नाइट में मेडिटेशन नहीं करो, मतलब अदर चीजें अट्रैक्ट करोगे, या ये तो थोड़ा माइंड में आ गया तो
वो वैसे मैं नाइट में ही करती थी बहुत नहीं, ज्यादा। और ये तो और मैंने ये स्टार्ट किया था माँ मेडिटेशन होपोनो पोनो प्रे से। हम्म, मैंने आईज क्लोज की, यूनिवर्स को लव भेजा, और मैंने कॉन्टिन्यूअस 1 मंथ किया था सब कुछ। मैं आपको सच बताऊं, उसके बाद अभी तक उस तरह से नहीं किया है। वो कंटिन्यू रहता था मेरा, 10:30 से 11:30 से बैठ के बाहर बालकनी में करती थी मैं, मुझे कोई डर नहीं लगता था। तो वो अंदर की तरफ जाते जा रहे थे और काफी चीजें देख रहे थे, पर जो पर्सनल लाइफ उसमें बहुत उथल पुथल हो गई थी। मतलब इन लोगों ने और परेशान करना शुरू कर दिया था। बट अभी तो सरेंडर कर दिया गॉड के आगे कि मतलब अब मेरे बस का नहीं है, देख लो, मुझे करना यही है, मेडिटेशन वगैरह इसी पाथ पे जाना है। तो चीजें ठीक हो रही हैं, लग रहा है जैसे गॉड ना आपको टॉक्सिक लोगों से मतलब उनको सेपरेट कर दिया है, आपको प्रोटेक्शन में रखा हुआ है, ऐसा कुछ हो रहा है। नहीं, और बच्चे की एनर्जी भी एक अलग एनर्जी होती है। एंड अभी तुम्हारा हाँ हाँ सारा डाइवर्शन कर्तव्य सब उधर जा रहा है, तो जो जरूरी है हाँ हाँ। थोड़ा टाइम अपने भी लिए भी निकालना है, क्योंकि वो अपने आप को भी स्टेबल करना जरूरी होता है। तो वो हम्म। अभी एक बार अलग से और एक तुम्हारा करेंगे डिस्कशन, ताकि तुम्हारा शेड्यूल बना पाए तुम्हारे लिए, और तुम एक कोई टाइम सेलेक्ट कर पाओ करने के लिए, ताकि तुम अपने आप को अच्छा भी देख। माँ, हाँ। मुझे आप ये मंत्रा चैंटिंग वाला मैंने बताया था आपको, ओम पार्वती नमः, हम्म। यही मंत्रा मैं इष्ट मानती हूँ पार्वती माँ को अपना। तो क्योंकि कहते हैं कि आप गुरु से कोई मंत्रा ले सकते हो, या फिर आप उन्हें बता सकते हो कि आप ये चैंट करते हो, तो आपको, मगर आपकी सोल क्या कहती है कि मुझे यही चैंट करना चाहिए, या आप स्पेसिफिक मुझे कोई मंत्रा बताना चाहती हैं पार्वती जी का कि मैं यही वो चैंट करूं? हाँ, वो मैं एक इस आप बारे तुम्हारा में। अलग से एक सेशन लूंगी, और तुम्हें तब उधर उसमें जी सब गाइड कर दूंगी मैं। ठीक है है मैम। ना? उसमें मैं तुम्हें पक्का बताऊंगी, ये करूंगी ताकि तुम्हारा वापस रूटीन भी थोड़ा एक कुछ चीजों को सेट करेंगे हम। हाँ तो फिर मैं नाइट की जगह मॉर्निंग में उठूँ, हर चीजें बैलेंस में हो, हाँ, वो ताकि एक मैं वो टाइमिंग हम प्रॉपर। लोग सेलेक्ट करेंगे, तुम्हारा पूरा शेड्यूल जी अंडरस्टैंड जी करके, ताकि तुम जी। तुम्हारा और ये वो स्टार्ट हो। मैं अपने वो चक्रास अलाइन कर सकूं। माँ ये थोड़ा फनी तो नहीं है, मैं अपने सेंसेस ओपन करना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि थोड़ा सा चीजें, मतलब थोड़ा पावर आए, आएगा आएगा आएगा, थोड़ा तुम्हें है, तुम्हारे में काफी चीजें हैं, तुम्हें इंट्यूशंस होती हैं चीजों की, इसलिए तुम कनेक्ट भी हाँ होंगे इंट्यूशन हमारे होते से। हैं। है सिर्फ कभी कभी हाँ जैसे बोलते हैं कि हाँ, चीजों के साथ लाइफ में थोड़े अलाइनमेंट चीजें इधर उधर होती है, बट इट्स ओके, क्योंकि यू नो हाउ टू क्रिएट, हम्म। तो वो ठीक है ना? लाइफ में है वो हम्म चैलेंजेस, वो भी तो फेस करना ही, वो भी हमारा हिस्सा है कर्मा के सारे। तो धरती पे आए तो वो भी करना ही हम्म। है हमें, ऐसा नहीं कि नहीं। हम्म हम्म। है ना? वो मैंने वो सुना है कि कर्मा डिसॉल्व होते हैं, आपके नाम जब वगैरह से कुछ कुछ कट जाते हैं, और तो इस वजह से मैंने काफी नेम चैंटिंग भी कर डाली है पार्वती जी की। तो कल हुआ क्या, मुझे एक गैया दिख गई, और उसके मैंने 1 लाख समथिंग अभी 15 दिन में चैंट कर रखा था, क्योंकि मैंने काउंटर लिया हुआ है। तो ना मैं, नहीं ऐसा नहीं कि काउंटर के लालच में कि मैं जल्दी 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 कितना गिन सकती हूँ, ऐसा नहीं था। मैं कहूँ हाँ। फील करके गिनूं, नहीं तो फायदा क्या नाम जपने का। तो पूरी फीलिंग के साथ डायरी में लिख लिया था, आज इतने हजार जपे, आज इतने हजार लिख के रख देती थी। तो उससे मुझे ना डेस्परेशन आती थी कि नेक्स्ट डे फिर जपेंगे। अब हुआ क्या कि कल गैया दिखी, बाबू को लेके मैं जा रही थी, उसका एक पैर का वो जूते जैसे सोल जैसे तो उनके पैर होते हैं, छोटी सी गैया, वो एक पैर का पूरा उखड़ गया था उसका, किसी ने गाड़ी चढ़ा दी कि क्या। अब वो भूखी थी, खा रही थी घास, और पैर जब मैंने उसके देखे, मैं क्या करूं, हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते, आसपास डॉक्टर भी नहीं है। तो प्रेमानंदन जी का देखा था कि आप नाम जब दे सकते हो या अपने पास रखो अपने कल्याण के लिए। तो मैंने कहा यार, मैंने कहा अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप ये वाला नाम ले लीजिए, उसको इतने में उसकी चोट ठीक कर दीजिए, मैं फिर से दोबारा से आज से नया स्टार्ट करूंगी, अब नहीं दूंगी। तो वो वाला तो उसको दे दिया। तो कल ही मंत्र जाप स्टार्ट किया, तो फीलिंग आई गुरु और सब कुछ आपको बनाते हैं। तो अभी मैं ना एक नए सिरे से सब कुछ शुरू कर रही हूँ। तो मुझे प्रॉपर टाइम टेबल में सब कुछ आपसे पूछना रहेगा कि कैसे क्या है। तो हाँ। वही नाम जप इसलिए पूछना था, नाम जप माँ सच में कर्म काट देते हैं क्या, मतलब? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, मतलब हाँ, ऑफ कोर्स तुम्हारी वो एनर्जी, तुम्हारे हर नाम में भी एक एनर्जी होती है, हर प्लैनेट की एक हम्म। एनर्जी होती है, तो उसके वाइब्रेशंस हाँ रहते ही हैं।
नेक्स्ट टाइम कभी अगर तुम ऐसे कभी किसी को देखती हो, लाइक यूजुअली हम लोग जो सोल्स रहते हैं हम लोग को नहीं नहीं देख पाते हैं कि कोई वैसे एनिमल या बर्ड भी किसी को हाँ तकलीफ हो रही है, और तब तुम्हें हाँ हाँ आसपास नहीं समझ में आता है कि मैं क्या करूं और नहीं हेल्प कर पा रहा ना, तो सिर्फ हाँ आप हाँ। एक प्रेयर भी कर दोगे ना, क्योंकि तुम्हारे सच्चे दिल की प्रेयर भी बाहर निकल के आती है कि नहीं, पहले मैंने उनको इसकी इसकी प्रेयर ही आत्मा, किया। इसको कोई ना कोई आ जाए, मिल जाए, और इसका अच्छा। ठीक हो जाए करके, बस अच्छा, इतना अब प्रे भी मैंने करो ना उनको दिल ये। से, कहीं ना कहीं रास्ता कोई ना कोई आ जाएगा, आते जाते उसको लेके जाएगा और ठीक कर, ये होता है। अच्छा, मैंने क्या कर दिया, मैंने प्रे में बोला आप प्लीज देवी माँ कुछ करके इसको ठीक कर दो। मैंने एग्जैक्ट, मुझे अपना प्रेयर नहीं समझ में आया कैसे करना है। हाँ। प्रेयर किया प्लस नाम भी दे दिया उसको। भी वैसे बोलते हैं नाम जब देना नहीं चाहिए इतना ज्यादा अगर आप सेल्फ के लिए कर रहे हो तो, लेकिन समझ में नहीं आया उस टाइम पे तो मैंने दे दिया। तो अभी मैं, मुझे एक चीज और बताई गई थी, अगर आप नाम जप करते तो जो फ्रीक्वेंसी है आपको चोट लगने की, जो जैसे लगता था कि कोई पहाड़ मार रहा है सर पे, वो आपको एक कंकड़ की तरह लगेगा, ऐसा कुछ होता है? मतलब वो पेन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो पेन नहीं होता है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा तुम मिक्स कर रही हो चीजों को मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से अच्छा। मैं इस पे एक अलग से सेशन ले लूंगी और फिर डाउट्स क्लियर करूंगी, ताकि और भी किसी को अच्छा हो तो ये डाउट्स क्लियर हो ठीक। जाए, लाइक नहीं तो फिर मैं ना मंत्रा जप स्टार्ट करूँ, क्योंकि वही टाइम नाम जप में तुम, देना है, हाँ, वही टाइम मंत्रा जप तुम में अपना देना ये है। मंत्र स्टार्ट कर लो, वो कंटिन्यू करो, उसमें कुछ भी इशू नहीं है, तुम्हारा पार्वती मंत्र तुम कंटिन्यू कर सकती हो। तो वो टाइम में मंत्रा जप में दे दूं इसलिए, क्योंकि नाम जप में दे रहे हैं तो इससे अच्छा मंत्रा जप में दे दें। मंत्रा जप ले लो, वो बेटर भी है तुम्हारे लिए, तो अभी वही स्टार्ट हाँ। कर लेना, है ना। चलो, तो थैंक यू पारुल, तुमने इतना तुम्हारा टाइम भी शेयर किया है, बच्चे को सुला के आके अपना टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा, और तुमने नहीं, अपने मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ कि अच्छे आपसे बात अच्छे हो रही है। एक्सपीरियंसेस शेयर किए, एंड ऑफ कोर्स मैं यूनिवर्स को भी थैंक यू बोलूंगी कि मुझे ये मौका दिया, तुम्हारे जैसे लोगों के साथ बात करना, उनके बारे में जानना, उनको हेल्प कर पाना, है ना, है ना? मैं हम तुम्हें लोग भी ग्रेटफुल हैं आप जैसे लोगों से मिलके। मैं एक छोटी सी दो लाइन बोलूंगी तुम्हारे लिए, अपनी इस चंचलता और सुंदरता को बरकरार रखना, अपनी अब अपनी क्रिएटिविटी की दुनिया में महकते रहना, और अपने गोल्डन सनराइज पर भी विश्वास और अपना प्यार बनाए रखना, बिल्कुल माँ, हमेशा। है ना। एंड मैं जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी बोलना चाहूंगी कि हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि और ऐसे लोगों के साथ आपकी बातचीत होएगी, और जानेंगे सीखेंगे आप भी अपने बारे में। सो कीप वॉचिंग, मोर टू कम विथ मोर हीलर्स एंड हीलिes ऑफ गोल्डन सनराइज ग्रुप। So like, share and subscribe to our channel. Thank you. Thank you everyone. Thank you. थैंक And thank you Paral. Thank you for joining in the session. थैंक थैंक यू माँ। प्रणाम माँ।